बुलेटिन करیں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان سیکیورٹی فورسز کی آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. ISPR کے مطابق 27 جولائی کو خیبر کے علاقے باغ میں دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ ہوئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی لوکیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا. فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد جہنم میں واصل ہوا. ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے ہتھیار اور گولی بارود برآمد ہوا ہے. مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 28 جولائی کو گومل زام شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا. مقابلے کے دوران 2 دہشت گرد جہنم میں پہنچا دیے گئے. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد سرگرمی میں معصوم شہریوں کے قتل و غارت میں ملوث تھے. کسی بھی دہشت گرد کی ممکنہ موجودگی کے خدشے کے پیش نظر دونوں علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. مقامی آبادی کی جانب سے آپریشنز کی حمایت کی گئی ہے. مقامی باشندوں نے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. کراچی سے آپ کو بتائیں گے کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی. فائر آفیسر عارف منصوری کے مطابق 12 گھنٹے پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے. اپڈیٹس لیتے ہیں فیکٹری میں موجود اپنے نمائندے عدنان راجپور سے. جی عدنان. جی بالکل، یہ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے جہاں آج دوپہر 3 بجے کپڑے کی فیکٹری ہے جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری کے اندر بڑی مقدار میں کپڑا گتا اور پلاسٹک موجود ہے جس کی وجہ سے آگ پر قابو پانا مشکل تھا. 14 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی مدد سے اس پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. کولنگ کا عمل جاری ہے جبکہ فائر بریگیڈ حکام کا بتانا ہے کہ آگ بجھانے کے دوران ایک فائر فائٹر بھی زخمی ہوا تھا جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد از جلد مکمل طور پر آگ پر قابو پا لیا جائے گا. لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے. 6000 گز پر یہ فیکٹری بنی ہوئی ہے. ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک ہے، مزید آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم کا تقرر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مشاورت شروع ہو گئی ہے. خواجہ آصف اور ایاز صادق کی پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات ہوئی. پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور خورشید شاہ موجود تھے. نگراں وزیر اعظم کے لیے سیاسی شخصیت کو ذمہ داری سونپے جانے پر غور کیا گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ابتدائی طور پر 5 ناموں پر اتفاق ہوا ہے. زیر غور آنے والے ناموں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں. 5 نام اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اتحادیوں کے اعتماد میں لینے کے بعد لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے گا. نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا اگلا دور 10 محرم کے بعد ہوگا. اتفاقی رائے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا. SN اقبال کے ناروال میں گفتگو. کہا الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. آئین کے مطابق حکومت اپنی مدت پوری کرے گی پھر الیکشن ہوں گے. جماعتوں میں مشاورت جاری ہے. جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا وہ اس قومی اتفاق رائے کا حامل ہوگا جس کے نتیجے میں اس کے نام کا چناؤ ہوگا. جب نگران حکومت قائم ہوگی تو وہ الیکشن شیڈیول دینے کا پابند ہے اور کس تاریخ کو الیکشن ہوگا اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. مزید آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کہتے ہیں ملکی حالات سازگار نہیں، وقت پر الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا. پروگرام دی رپورٹرز میں بات کرتے ہوئے کہا اسحاق ڈار سخت آدمی ہے، معیشت کے معاملات کے لیے نرم آدمی چاہیے. طلحہ محمود نے کہا کسی بزنس مین کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان کا ہر شخص پریشان ہے. تھوڑے سے سخت ہیں، معاشیات میں نرمی چلتی ہے اور ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ کا جو ٹاپ مین ہونا چاہیے وہ بزنس مین ہونا چاہیے. ہمارا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ معاشیات ہے. میرا ذہن کہتا ہے کہ شاید تھوڑا سا لنگر ہو. انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ماحول بہت زیادہ گرم بھی ہے اور حالات بھی بہت زیادہ ناسازگار ہیں. معاشی طور پہ بہت زیادہ مشکلات. کاروباری حلقے کے اندر آپ جائیں تو دیکھیں گے ہر آدمی آپ کو پریشان ملے گا.
और यहाँ पे आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई हुकूमत में नजर आ रहा था, मईशत ऐसे नहीं चल सकती है। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का जियो को इंटरव्यू, हम मईशत के लिए मशवरा देते थे लेकिन चेयरमैन पीटीआई सुनने को तैयार नहीं थे। शब्बर जैदी ने कहा तंबाकू और स्टील माफिया पर हाथ डाला तो सैनिटर्स कायदे तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए कि इसको रोकें। शहजाद अकबर आकर कहते थे नून लीग अरकान के खिलाफ टैक्स केस बनाएं। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे मुकदमात बनाने का कभी नहीं कहा, वो बस इतना कहते थे कि शहजाद अकबर को सुन लें। शब्बर जैदी की गुफ्तगू हकायक के खिलाफ हकायक मस्ख करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। शब्बर जैदी के इंटरव्यू तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बर जैदी खुद उनकी ज़द में आते हैं। शब्बर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दागे, वो तनकीद से पहले हकायक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। शब्बर जैदी सालाना इक्तिसादी सर्वेस और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें। शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहां से इजाद कर दी? असद उमर का शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। अपने ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी, जिसके इख्तिताम पर स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मेरे वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था। उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहां कहां से आ गई? मौजूदा हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफॉल्ट कैसे होता? मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, पीटीआई पर नहीं। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया जो नशर किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर तबसरे ना किए जाएं। मेरा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जाए, मैं यकीनी बनाऊंगा गैर जरूरी एडिटिंग ना हो। कह चुका हूं चेयरमैन पीटीआई की मुआशी पॉलिसीज में कोई खामी नहीं थी। जियो न्यूज से नशर इंटरव्यू में शब्बर जैदी ने कहा पीटीआई की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन पीटीआई को खराब मईशत का बताया लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई पर जीआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुल्जिम को ऑफिसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुल्जिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। हम कोई गुलाम है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले दुबई और लंदन में हों? पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन एडवोकेट कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में तो वाहिद अपोजिशन पार्टी पीटीआई से बात करना होगी। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, खौफ का माहौल खत्म ना हुआ तो शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल है। के बारे में फैसला पाकिस्तान में मुशावरत नहीं हो सकती तो फिर कहीं और होगी, तो फिर ये गुलाम कौम तो हो सकती है। ये एक आज़ाद डेमोक्रेटिक कौम कहलाना हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। इस साफ और शफाफ इलेक्शन क्रेडिबल और जिसके ऊपर सबका रजामंदी हो अगर कराना चाहते हैं तो एक्चुअल तो सिर्फ एक ही अपोजिशन है, वो है पीटीआई। आप उससे तो कोई बात नहीं करना चाहते। और उससे आगे आज जो जबर और खौफ की फिजा है और जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, पहले उसको तो खत्म करें, कम करें, ताकि इलेक्शन का एक फिजा और माहौल तो बने। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे मानसेरा बाबूसर टॉप के करीब गेटी दास में खौफनाक हादसा पेश आया है। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 9 शदीद जख्मी हो गए। आग लगने के सबब गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशें और जख्मी अफराद को रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिल्लास पहुंचाया। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का ताल्लुक साहिवाल से है। एक नौजवान हादसे में महफूज रहा। बच जाने वाले नौजवान ने बताया बुलंदी पर पहुंच कहते गाड़ी खराब होने पर रुक गई। पहिए के पीछे पत्थर लगाने के लिए मैं गाड़ी से बाहर निकला, पीछे पत्थर लगाया, गाड़ी रुकी, फिर आगे बढ़ी। मैंने पत्थर हटाया और गाड़ी रिवर्स होकर खाई में जा गिरी। थे पूरी फैमिली थी मेरी, बाबूसर टॉप जा रहे थे। हम पहुंच ही गए थे ऊपर। जब चढ़ते हुए गाड़ी अचानक रुकी है तो फिर मैं उतरा हूँ। मैंने पत्थर उठाया और मैंने
टायर के पीछे रखा है ताकि रुक जाए गाड़ी। तो गाड़ी रुक के आगे गई है थोड़ी, तो मैंने पत्थर उठाया वापस रखा है और मैं गाड़ी की तरफ भागा के अंदर बैठूं। वो अचानक गाड़ी फिर रुकी और पीछे शूटर हो गई, मतलब कि रिवर्स हो गई है। और फिर मैं कोशिश की कि कुछ कर सकूं, लेकिन वो निकल गई थी। 2 घंटों की बारिश ने सक्खर के बासियों को दोहरे अजाब का शिकार कर दिया। लोगों ने खुदा खुदा करके इस उम्मीद पर रात काटी कि दिन में सफाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक सड़कों पर कई फुट खड़ा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। मार्केट से दुकानदार अपनी मदद के तहत निकासी में मसरूफ हैं। 2 घंटे की बारिश के 2 दिन बाद तक शहर से पानी क्यों नहीं निकाला जा सका? AY न्यूज के सवाल पर मेयर अरसलान शेख बोले, हल्फ उठाते ही कह दिया था बड़ी बरसात से निपटने के लिए तैयार नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लोगों ने गच्ची आबादियां बनाकर कब्जे कर रखे हैं, इसलिए पानी की निकासी में मुश्किलात दरपेश हैं। बारिश हुई है, ये पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में इस फ्रीक्वेंसी के साथ आज तक कभी सक्खर के अंदर बारिश हुई नहीं है। जब हमने ओथ लिया था, मैंने उसी वक्त ये कहा था कि हम बड़ी बरसातों के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमने अपना होमवर्क कर लिया। नेक्स्ट मॉनसून से पहले वी विल बी 100% वेल इक्विप्ड। हम मुश्किल से मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए प्रिपेयर होंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम इस काबिल नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। 70-80% वो एरियाज हैं जो अनप्लान्ड एरियाज हैं, जहाँ पे गरीब लोग आबादियां उन्होंने कच्ची आबादियां स्टैब्लिश कर ली। कच्ची आबादियों ने पॉन्ड्स के ऊपर कब्जे किए, जहाँ पे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता था। ये लोएस्ट ग्रेविटी पॉइंट है और इसकी वजह से पानी रिवर्ट होकर बैक हो रहा है। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तसर दौरे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात की। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनके भाई शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की। उन्होंने ताज़ियत करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। IMF की शर्त, आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तज्जियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% हो सकती है। मुल्क की तारीख में शरह सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। PDM हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक मंसूबे पर दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। मुआहदे के तहत मंसूबे पर $6.5 अरब लागत आएगी, जिसका 15% पाकिस्तान देगा। लागत कम करने के लिए मुकम्मल ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाने का प्रोग्राम मौखिर कर दिया गया है। सिर्फ आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी। और यहाँ पे आपको बताएंगे, PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहा निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बातचीत शुरू हो गई, चाहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और परवेज खट्टर की जमात मफाद परस्तों का टोला है। मजीद आपको बताएंगे, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। फयाजुल हसन चौहान ने कहा हाफिज हमदुल्ला जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा IPP पर मत निकालें। दुबई प्लान में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया तो IPP का कोई कसूर नहीं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के किसी रहनुमा ने मफाद के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। 9 मई की दहशतगर्दी ने हमें अपनी सियासत और रियासत को बचाने पर मजबूर किया। JHUI अपने खिलाफ PDM में होने वाली साजिशों पर नजर रखे। IPP पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने PTI के साबिक MPA सिमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। उन्हें 3 अगस्त तक शनाख्त रेट के लिए इडियाला जेल भेज दिया गया। सिमाबिया ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से सिमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने का इल्जाम है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वीडियोज और मुनशिया स्कैंडल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना थी। 5 रुकनी कमेटी की सरबराही बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर मोहम्मद अली करेंगे।
रेक्टर्स नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मौसम मिजाज, प्रो वीसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर नजमा नजम, रेक्टर इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज लाहौर ताहिरा अजीज और एडवाइजर PND फाइनेंस मजहर सईद कमेटी में शामिल हैं। कमेटी हकायक सामने लाने के लिए स्कैंडल से जुड़े तमाम अफराद से पूछताछ करेगी। कश्मीर के कच्चे में गुज़श्ता रोज हलाक डाकुओं से मिलने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। SSP अमजद शेख ने बताया है कि हलाक डाकुओं से मिलने वाले असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs, 2 RPGs रॉकेट और 9 RPGs गोले भी बरामद हुए हैं। मिलने वाले सामान में 708 एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां और 1390 SMGs की गोलियां शामिल हैं। हलाक डाकू जदीद असलहा पुलिस और मकवियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मजीद आपको बताएंगे, पाकपतन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कमसिन बहन भाई मौके पर जाँ बहक और मां बाप समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। पाकपतन के नवाही गांव के करीब सड़क पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल सवार खानदान टकरा गया, जिसके बायस 4 साला रेहान और 5 साला अमरीन फातिमा मौके पर जाँ बाक हो गए। वालिद मोहम्मद मुनीर और उसकी बीवी मेराज बीबी और गुलाम मुस्तफा शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद आपको बताएंगे, MP असलम आबरो के भाई अकरम आबरो और भतीजे का कातिल मुबैना तौर पर बलोचिस्तान फरार हो गया। जराये का कहना है मरकजी मुलजिम को मोबाइल फोन गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम के 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में ले लिए गए हैं, जिसके बाद से हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई है। जराये का कहना है कि पुलिस असल मुलजिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे में चला गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद आज यौम आशूर मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जल्स और जालिस का एहतमाम होगा। मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस इख्तिताम पजीर शहदाए करबला को खैराज अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। बाद शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिक्योरिटी कैमरों से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से, आपको बताएंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात के मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, कलात, खुस्तार, बारखान, सिब्बी, लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, पेशावर, चारसदा, मर्दान, नौशेरा, एबटाबाद, मानसेरा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश मुतवक्के है। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब और पानी के तेज बहाव से मोमिका के मकाम पर आरजी बंद टूट गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक बंद टूटने से मोमिका, बिलाड़ी, तोगीरा समेत मुतादिद आबादियां ज़ेर आब आ गई। सैलाबी पानी से जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से इलाका मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तलम्बा में दरियाए रावी में भी निचले दर्जे के सैलाब में मौजू रुटला के मकाम पर बनाया गया बंद टूट गया, जिसके बायस लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इमदादी रजाकारों ने सैलाब में फंसे 3 बच्चों, 5 खवातीन समेत 15 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी है। कोहलू में नदी नालों में तुगयानी आबिर वेले में गाड़ी बह गई। बोलान में पिंजरा पुल सैलाबी वेले से मुतासिर। जाफराबाद, डेरा यार में पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी डूब गया।
भारत ने LOC अबूर किया तो फूलों के हार नहीं पहनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहा, कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकते। इंडिया हमसाया मुल्कों खास तौर पर पाकिस्तान से बहुत जारहाना रवैया रखता है।